آپ دنیا کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم چلے گا اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صبح شام اپنے والدین کے دلوں کو دکھایا کرتے ہیں, جو سب روز اپنے والدین کو ستایا کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آخر بات کیا ہے, آپ کیوں اپنے والدین کو ستا رہے ہیں, آپ کیوں اپنے والدین کو درد دے رہے ہیں, تو ان کے پاس یہی جواب رہتا ہے, ارے ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے, ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے, اس میں میری غلطی ہے, ان کی غلطی ہے. ارے نادان, آج تیرے اندر چلنے کی طاقت آ گئی تو اس باپ کو خطاوار بنا رہا ہے. جس باپ نے اپنا خون جگر پلا کر تجھے اتنا بڑا کیا, تو اس ماں کو گناہ, تو اس ماں کو غلطی پر ٹھہرا رہا ہے. جو ماں اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تجھے شکم سیر کی, تو اس ماں کو خطاوار بتا رہا ہے. جس ماں نے تیرے لیے نہ جانے کتنوں کی گالیاں سنی, جس ماں نے تیرے لیے نہ جانے کتنوں کے درد کو سہا کہ کہیں میرے بیٹے کو درد نہ ہو جائے, کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے. ہاں آپ دنیا کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب بیٹا چھوٹا رہتا ہے تو وہ ماں کو ماں کہتا ہے, باپ کو باپ کہتا ہے, مگر جب وہی بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ماں کو ماں کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے, باپ کو باپ کہنے میں شرم محسوس ہوتا ہے. ارے نادان, تجھے ہو کیا گیا ہے, جب تو چھوٹا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ ابو میرے ہیں, امی میری ہے, بھائی بھائی سے لڑا کرتا تھا, کرے بھائی ابو تیرے نہیں ابو میرے ہیں. دوسرا بھائی جواب دیا کرتا تھا, ارے نہیں ابو تیرے نہیں ابو تو میرے ہیں, امی تیری نہیں امی تو میری ہے. مگر جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, ارے بڑے بھائی جان ابو میرے نہیں ابو آپ کے ہیں, اور ادھر سے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں ابو میرے نہیں ابو تیرے ہیں. ارے نادان, تو کس موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جب تجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, جب تجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی, جب تجھ میں اتنی سننے کی طاقت نہیں تھی, جب تو خود سے چل نہیں پاتا تھا, جب تو خود سے بول نہیں پاتا تھا, جب تو خود سے کھا نہیں پاتا تھا, اس وقت تو ماں سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا, اس وقت تو باپ سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا. آج آخر کیا بات ہے, تو ماں سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو باپ سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات دیکھا جائے تو معلوم چلے گا کہ بہت سے ایسے بچے ہیں کہ شادی سے پہلے ماں کی بہت خدمت کیا کرتے ہیں, مگر جیسے شادی ہو جایا کرتی ہے اب انہیں ماں نہیں لگا کرتی ہے, اب انہیں باپ نظر نہیں آتا, بلکہ وہ اپنی بیوی کے چکر میں پڑ کر اپنی بیوی کے خوشی کے لیے ماں کے دلوں کو دکھایا کرتے ہیں. بیوی جائز کام کے لیے کہے تو وہ کریے, مگر ناجائز کام کے لیے کہے تو قسم خدا کی وہ بیوی ہو یا کوئی اور ہو, اس کے لیے ماں کے دل کو نہ دکھایا کرے, کیونکہ ماں وہ انمول دولت ہے. اگر ایک بار ماں ہاتھ سے نکل گئی تو آپ دنیا کے کونے کونے کا جائزہ لے لیجئے, دنیا کے کسی بھی بازار میں چلے جائیے, آپ کو ماں نہیں مل پائے گی, آپ کو باپ کا پیار نہیں مل پائے گا. آج جن کے چکر میں لوگ ماں کو چھوڑا کرتے ہیں, آج جن کے چکر میں لوگ باپ کو چھوڑا کرتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو لوگ انہیں خود چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کبھی اپنے دوست کے لیے باپ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, کبھی اپنی بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. ارے نادان, تجھے ہو کیا گیا ہے, وہ باپ جو شب و روز تیری پرورش میں لگا رہا, تیری فکر کرتا رہا, آج وہ باپ بڑھاپے کو پہنچا ہے اور تجھ سے دوا کے لیے پیسے طلب کرتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, ارے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں, میں آپ کی دوا کے لیے پیسے کیسے دے سکتا ہوں. بتائیے ایسی بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو معلوم چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باپ کو ایک پیسے بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہوا کرتے ہیں. ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے آ گئے, اب وہ اپنی بیوی اور بچوں میں مصروف ہو گئے. انہیں پتا نہیں کہ جتنا میں پیار اپنے بچوں سے کر رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ پیار میرا باپ مجھ سے کیا کرتا تھا. تو کیوں باپ کو چھوڑا جا رہا ہے, کیوں ماں کو چھوڑا جا رہا ہے؟ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ بہت سی بوڑھی عورتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو بچے چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں فضول میں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ماں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کی خیریت پوچھ لے. جو بچے ادھر ادھر دوستوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ وہ تھوڑی
थोड़ी देर बूढ़े बाप के पास बैठ कर पूछे कि अब्बू जान आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दर्द तो नहीं है, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है। अरे दोस्तों से वो फोन पर भी पूछते हैं तुझे जो कमी होगी मुझे बताना, मैं तेरी कमी को दूर करूंगा, तुझे जब मेरी जरूरत पड़े मुझे आवाज देना, मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। अरे नादान, दोस्तों से तो फोन पर भी बातें कर रहा है और खैरियत में खैरियत पूछ रहा है, और उस बाप का तुझे ख्याल ना आया जिस बाप ने अपना खूने जिगर पिलाकर तुझे पाला। अरे जिस दोस्त से तू दूर से भी खैरियत ले रहा है, करीब से भी खैरियत ले रहा है, याद रखना उस दोस्त को तुझसे प्यार नहीं बल्कि तेरी दौलत से प्यार है, तेरी शोहरत से प्यार है, तेरी इज्जत से प्यार है। जिस दिन तेरी शोहरत तुझसे छीन जाएगी तेरे दोस्त जुदा हो जाएंगे, जिस दिन तेरी दौलत तुझसे छीन जाएगी तेरे अपने तुझसे जुदा हो जाएंगे। अगर कोई याद रखने वाला है तो वो माँ बाप की जात है, वो माँ बाप की शख्सियत है। हाँ बेटा, अगर घर से थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर घर पे नजर ना आए तो माँ बेचैन हो जाया करती है कि आज आखिर बात क्या है, आज आखिर क्या बात है कि अभी तो मेरा नजर यही था और नजर नहीं आ रहा है, आखिर वो चला कहाँ गया है। जब तक वो लौट कर नहीं आता वो इसी फिक्र में मुब्तला हो जाती है, इसी फिक्र में मुब्तला रहती है और अपने बच्चे के बारे में सोचा करती है। रात को न तो उसे नींद आती है न तो दिन को उसे चैनो करार आता है। हाँ, माँ का मकाम कितना बड़ा है, माँ अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है। आइए अम्मा आयशा से पूछते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं मैं अपने घर में थी, मैं अपने घर में रब्बे कायनात का हम्द कर रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ व तौसीफ कर रहे थे। इतने में क्या देखती हूँ कि दरवाजे पर कोई आकर मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे मालूम नहीं है कौन दरवाजे के बाहर। जब आवाज लगाई तो बाहर से आवाज आई, खातून की आवाज आई। वो दरवाजा खोलती है और पूछती है बता बात क्या है, क्या मामला है, माजरा क्या है। वो खातून कहती है मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, अगर आपके पास चीज मौजूद हो तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के भूख को मिटा सकूं। अम्मा आयशा 3 खजूरें लाती है और लाकर दे देती है। अब वो माँ एक खजूर अपने बेटे को देती है, दूसरा खजूर अपने दूसरे बेटे को देती है और तीसरा खजूर खुद खाना चाहती है। इतने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और क्या देखते हैं कि आयशा जारो कतार रो रही है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अरे आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया, तू क्यों रो रही है। अम्मा आयशा कहती है माँ की ममता को देखकर रोना आ रहा है कि माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं बात क्या है, मामला क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। अम्मा आयशा सारा वाकया बयान करती है, कहती है या रसूल अल्लाह उस खातून को मैंने 3 खजूर दिया, वो खातून एक खजूर अपने एक बेटे को दी और दूसरा खजूर दूसरे बेटे को दी, तीसरा खजूर खुद खाना चाहिए ताकि मेरी भी भूख मिट जाए, मैं भी थोड़ी देर के लिए मुझे भी राहत मिल जाए। मगर उसके दोनों बेटे उसके दोनों बेटे खजूरें खाकर अपने माँ के चेहरे की तरफ देखने लगे। फिर वो माँ जो अपनी भूख को मिटाने के लिए, थोड़ी देर आराम हासिल करने के लिए, थोड़ी देर राहत हासिल करने के लिए अपने मुंह में जो खजूर डाली थी बच्चों के चेहरे की तरफ देखती है तो उसे याद आता है अरे अभी मेरे बच्चों का पेट नहीं भरा है, पहले मैं अपने बच्चों के पेट को भरती हूँ। अब वो माँ जो खुद भूखी है अपने मुंह से खजूर निकालती है और उसे 2 हिस्सों में तकसीम करती है और अपने दोनों बेटों के दरमियान तकसीम कर देती है। इस रात देखिए ये है माँ कि जो खुद भी भूखी है मगर इसके बावजूद भी उसे ख्याल आ रहा है तो अपने बच्चों के बारे में। आज अगर आप दुनिया का जायजा ले तो आपको मालूम चलेगा कि आज तो दौरे हाजिर में प्यार और मोहब्बत का बोलबाला है, हर कोई फोन पर लगा हुआ है और उसके चक्कर में लोग अपने वालिदैन को न जाने क्या क्या बका करते हैं। लोग अपने उस मजाजी महबूबा के लिए अपनी उस माँ को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं जिस माँ ने 9 माह तक अपने कोख में रखकर परवरिश की, न जाने कितने मसाइब व आलाम का सामना किया, मगर उस बेटे को जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं आता कि मैं किसके लिए किसको छोड़ रहा हूँ। अरे नादान, जिसके लिए तू जिसे छोड़ रहा है वो आज तेरा ख्याल रख रही है, कल नहीं रखेगी।
तू अपनी गर्दन भी कटा देगा उसके नाम पर, तब भी वो तेरा एहसान नहीं मानेगी। और माँ की जात ऐसी जात है कि खाने के लिए दो तब भी वो दुआ करेगी, न दो तब भी दुआ करेगी। माँ के जुबान पर कभी बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं आती, बल्कि माँ जब भी अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाती है तो यही दुआ करते हैं, रब्बे कायनात, मेरे बेटे ने मेरे साथ जो रवैया रखा, मगर मौला कभी इसे बेचैनो बेकरार न करना। इसने मुझे भूखा रखा, मैं सब्र की, मौला तू इसे भूखा न रखना। इसने मुझे प्यासा रखा, मैं सब्र की, मगर मौला तू इसे प्यासा न रखना। तो इसे दोनों जहां की नेमतों से माला माल करना। हजरात, एक दौर ऐसा था कि एक शख्स अपनी महबूबा के चक्कर में पड़ा, और जब उसके करीब जाना चाहा तो उसकी महबूबा क्या बयान करती है, कहती है, मैं तभी तेरे करीब आऊंगी, मैं तभी तेरे करीब आऊंगी जब तू अपने माँ का दिल निकाल कर मेरे पास लाएगा। बताइए वो कितनी बड़ी बात बोल रही है। और वो इश्क में बना दीवाना जर्रा बराबर भी नहीं सोचता, और महबूबा के बात पर अमल करने के लिए, महबूबा को पाने के लिए निकल पड़ता अपने घर की तरफ, और माँ के करीब पहुँचता है। फिर जो वो कहती है कि मैं तब तुझसे करीब होंगी जब तू अपने माँ का दिल निकाल कर लाएगा। अब वो नादान चला अपने माँ के करीब पहुँचता है। माँ तो ये सोचती है, अरे मेरा नूरे नजर आज मेरे करीब आया है, मेरी खैरियत ले रहा है, लग रहा है इसके दिलों में मेरी मोहब्बत और बढ़ गई है, लग रहा है इसके नजरों में मेरा वकार और बढ़ गया है, लग रहा है इसका पत्थर दिल मोम बन चुका है। अरे आज तो मेरा नूरे नजर मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा है, मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। इससे पहले इसका ये अंदाज नहीं रहा करता था, लगता है इसका पत्थर दिल मोम बन चुका है। मगर उस माँ को मालूम न था कि अरे ये मोहब्बत का जादू, मोहब्बत दिखा करके ये मेरे सीने से मेरा दिल निकालना चाह रहा है। हाँ, मोहब्बत दिखाते दिखाते जब वो माँ के ऊपर वार करता है, वार करने के बाद जब उस माँ का दिल निकाल कर लेकर चलता है कि अब मैं जल्दी जल्दी चलो, अपनी महबूबा को राजी कर लो, अपनी महबूबा को खुद से करीब कर लो। अल्लाह अकबर, आप माँ को देखिए, बेटा माँ का दिल निकाल चुका है, इसके बावजूद भी माँ बेटे से नाराज नहीं हो रही है, इसके बावजूद भी माँ बेटे के लिए दुआएं कर रही है। हाँ, जब वो बेटा अपनी माँ का दिल निकाल करके अपने महबूबा को राजी करने के लिए चलता है, वो तेज रफ्तार में चलता है, चलते चलते उसे ठोकर लगती है, वो जैसे ही जमीन पर गिरता है माँ के दिल से आवाज आती है, अरे मेरे नूरे नजर तुझे चोट तो नहीं लगी, अरे मेरे लखते जिगर तुझे तकलीफ तो नहीं हुई। आप जरा देखिए, जिस माँ का वो दिल निकाल कर लेकर चला था, वो ना तो ये चाहिए था माँ उसका ख्याल ना करती, उसके लिए दुआएं ना करती, क्योंकि उसने अपने माँ का कत्ल किया है, अपने माँ का दिल निकाला है। मगर इसके बावजूद भी माँ का दिल निकला हुआ है, मगर दिल में बेटे के लिए प्यार बसी हुई है, माँ का दिल सीने से बाहर है, मगर फिर भी बेटे के लिए उस दिल में मोहब्बत भरी हुई है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ बेटे के लिए दुआ ही दुआ कर रही है। तो ये मेरे कौम के सुन्नी जन्नती मुसलमान, हालात चाहे जैसे क्यों न हो, कभी वालिदैन के दिलों को न दुखाया करें, क्योंकि वालिदैन ऐसी नेमत हैं, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई मौलवी आपको जन्नत नहीं दिला सकता, दुनिया का कोई वली आपको जन्नत नहीं दिला सकता। जन्नत अगर आपको लेनी है तो पीरों की बारगाह में सब कुछ पेश कीजिए, उससे पहले माँ की बारगाह में पेश कीजिए, मज़ारों पर पेश कीजिए, मगर उससे पहले वालिद को पेश कीजिए। आप मज़ारों पर जाकर चादरों पे चादरें चढ़ाइए, मगर कभी माँ को भी एक जोड़े दे खरीद कर दे दीजिए। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मगर साथ ही साथ उस बूढ़े बाप का भी ख्याल रख लिए जिसने अपनी पूरी जवानी आपके लिए कुर्बान कर दी। मगर आज हाल ये है कि लोग पीर को खुश करने में लगे हुए हैं। यहाँ वालिद भूखा है और वहाँ बेटा पीर खाने में लंगर चला रहा है। यहाँ माँ फटे पुराने कपड़े में मलबूस है और वहाँ बेटा पीर साहब के यहाँ कपड़े पे कपड़े पहुँचा रहा है, साफे पे साफे पहुँचा रहा है। यहाँ माँ बाप भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे, बेचैन है, बेकरार हैं। वहाँ बेटा कभी गरीब नवाज के बारगाह में जाकर चादर पे चादर चढ़ा रहा है, तो कभी मदारे पाक के बारगाह में जाकर चादर पे चादर चढ़ा रहा है, कभी साबिरे पाक के बारगाह में जाकर चादर पे चादर चढ़ा रहा है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, साबिरे पाक तब राजी होंगे जब आपके वालिदैन आपसे राजी होंगे, मदारे
प्यारे पाक तब राजी होंगे जब आपके वालिदैन आपसे राजी होंगे। गरीब नवाज तब राजी होंगे जब आपके वालिदैन आपसे राजी होंगे। हाँ, खुद मुस्तफा जाने रहमत तब राजी होंगे जब आपके वालिदैन आपसे राजी होंगे। रब्बे कायनात तभी आपसे राजी होगा जब माँ बाप आपसे राजी होंगे। उलमा ने लिखा है, बुजुर्गाने दीन ने इरशाद फरमाया है कि एक तरफ हजारों औलिया कराम आपके लिए दुआ करे और दूसरी तरफ एक तने तन्हा बाप बद्दुआ करे। रब्बे कायनात हजारों वलियों की दुआ को नहीं सुनेगा, उस बाप की बद्दुआ को सुनेगा। इतना बड़ा मकाम है माँ बाप का, मगर हाल ये है कि लोग सिर्फ सुनते हैं और अमल नहीं करते। फिर कहते हैं हम परेशान हैं, फिर कहते हैं हम मुसीबत में मुब्तला हैं, फिर कहते हैं हम दर्द में मुब्तला हैं। अरे मुसीबत झेलेगी क्यों नहीं? बाप का दिल दुखाए और चैन मिले, माँ को सताए और सुकून मिले, कभी नहीं मिल सकता। चैन तभी मिलेगा जब माँ राजी होगी, सुकून तभी मिलेगा जब बाप राजी होगा। माँ बाप को सताए बगैर न तो सुकून मिल सकता है न तो चैन मिल सकता है। जमीन के ऊपर भी वो बेटा रहेगा तब भी बेचैन रहेगा, और कल जब जमीन के नीचे जाएगा तब भी बेचैन रहेगा, और मैदान महशर में भी बेचैन ही बेचैन रहेगा। अरे माँ तो ऐसी है कि बच्चा चाहे जैसा ही क्यों न हो, माँ बच्चे को जब भी देखती है बड़ी मोहब्बत भरी नजर से देखती है। आपके भी अपने बच्चे हैं, कभी आप अपनी बीवी को देखिए, अपने बेटे को क्या कहकर बुलाती है आपके बेटे को, वो चाहे काला हो या गोरा हो, मगर माँ के जुबान पर सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो ये नहीं कहती अरे काले इधर आ। वो जब भी अपने बेटे को बुलाते हैं तो कहती है मेरे चांद इधर आ, मेरे लखते जिगर इधर आ। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हसीन है तो तू है, अगर सबसे ज्यादा अच्छा है तो तू है। तो आप जरा सोचिए, कल जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन भी हमें ऐसे ही बुलाया करते थे, मगर आज बेटों के पास इतना वक्त नहीं कि अपने माँ बाप के पास बैठ कर उनके खैरियत हासिल करे और उनसे पूछे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दर्द तो नहीं है। उस बात को बहुत अफसोस होता है कि जिस बेटे के लिए मैं गांव वालों से लड़ा, जिस बेटे के आराम की खातिर मैं अपने शहर वालों से लड़ा, जिस बेटे के सुकून के लिए मैं अपने दोस्तों अहबाब से लड़ा, आज जब मुझ पर बुढ़ापा आया है तो वही बेटा मुझे नहीं देख रहा है, वही बेटा मुझे एक बंद कोठरी में छोड़कर अपने ऐश वाली जिंदगी गुजार रहा है, अपनी सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा है। अरे नाना, वो सुकून बज़ाहिर सुकून है, दिल तब मुतमईन होगा जब बाप दुआ करेगा, दिल को करार तब होगा जब माँ दुआ करेगी। हाँ, माँ की जात तो ऐसी है कि कभी आप माँ से एक मर्तबा ये कहकर तो देखिए कि अम्मी जान मैं परेशान हूँ, मेरी माँ आज मेरी तबीयत नहीं सही है। कसम खुदा की उस माँ को करार नहीं आएगा, उस माँ को सुकून नहीं आएगा जब तक आपकी तबीयत दुरुस्त न हो जाए, जब तक आपका बिगड़ा हुआ वक्त न समझ जाए, जब तक आपके बिगड़े हुए हालात न सही हो जाए। हाँ, इन्हीं सब चीजों को देखकर तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पर वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, मेरी माँ तमाम रात दुआओं में गुजार दी, मेरी माँ तमाम रात दुआओं में गुजार दी। और ये बात हकीकत भी है। अगर आपको पता न चले कि मेरे माँ बाप मुझसे बचपन में मोहब्बत किए थे या नहीं किए थे, तो अपने बेटे की तरफ नजर करके देखिएगा कि आप अपने बेटे को किस नजर से देखते हैं, क्या एक जालिम की नजर से देखते हैं या मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं। अगर आपको मालूम न चल पाए कि आपकी माँ ने बचपन में आपसे प्यार किया था या न किया था, तो अपनी बीवी को देखिएगा कि वो आपके बच्चे से किस तरह मोहब्बत कर रही है। वो मोहब्बत कर रही तो समझ जाइएगा कि मैं भी छोटा था तो मेरे माँ बाप भी ऐसे ही मोहब्बत किया करते थे, ऐसे ही प्यार किया करते थे। तो हज़रात, आप जो है कोशिश यही करें कि जहाँ तक हो सके वालिदैन हमसे कभी भी नाराज़ ना हो, क्योंकि अगर वालिदैन राज़ी रहे तो हम आबाद रहें।